Hello my dear students, welcome to my class. Student, today I am going to start ellipse. So today I will discuss about the basic things of the ellipse, and then I will teach equation of this ellipse that. So let's start ellipse. Written here ellipse. What is the shape of ellipse? You should know this is the shape of the ellipse that. ये ellipse का shape है. नहीं अच्छा बना, कोई बात नहीं. And hand drop. This is the shape of the ellipse that. ये ellipse का shape आप मान लीजिए, ठीक है. This is shape of the ellipse that. So what is ellipse that? चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. Let L is a fixed line. L is a fixed line. F is a fixed point. F is a fixed point. If you take the P, E is a real number less than 1. F is a fixed point, L is a fixed line, E is a real number less than 1. Okay. So set up all points P in the plane L and F. Set up all point P in the plane L and F such that FP equal to EMP. अब MP क्या है? यहाँ से from here to here. Draw from P perpendicular on this line, fixed line that. Okay. So such that FP is equal to EMP. So set up all points. अब all points क्या है? All points means we can take P1, so FP1, P2, FP2 is equal to यहाँ से ड्रा कर लीजिए. जैसे हमने यहाँ ले लिया P1, draw one line that is the. So such that FP1 is equal to EP1 M1. इसी तरह से यदि हम यहाँ लेते हैं P2, so FP2 is equal to draw one line. What will be P2 M2? EP2 M2. Okay, that is called the ellipse. Or other way we can say, दूसरी तरह हम कह सकते हैं ellipse के लिए कि दो फिक्स पॉइंट ले लें F1 and F2, and one point taken that if you tie thread and allow to rotate, so you will find that this shape will be formed. that यह shape का जो है फॉर्मेशन आपको मिलेगा. इस shape का आप पाएंगे कि will get that this shape ellipse will be formed that. So we can say it is the set of all point. ये सब points है. It is the locus of the points. Locus of the points such that whose distance, sum of whose distances is constant, means that Pf1 plus Pf2 is equal to constant. If you are taking here, कहीं यहाँ हम लेते हैं P, that will be same value. If you are taking here, so that will be same value there. So such that it is the set of the points such that whose distances Pf1 and sum of whose distances is constant, means the Pf1 plus Pf2 या यहाँ से हम उसी पॉइंट को यहाँ आ जा रहा है अगर, तो Pf1 या Pf2 यहाँ से देखें तो वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो इधर से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके. सो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड सम पार्ट ऑफ द इलिप्स एज पैराबोला. आपने सीखा उसी तरह से इलिप्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए. ओके. दिस इज इलिप्स बना नहीं. दिस इज नॉट करेक्ट शेप दैट. इलिप्स का शेप नहीं आया है. मान लीजिए दैट इज आपको मानना पड़ेगा. ओके. सपोज ये इलिप्स है जो है, ठीक है. ओके. सही हो क्या? ओके. देयर विल बी टू फोकस F1 F2, ठीक है. F1 and F2, there will be two focus that. This is the line that is called the directrix that. अब आइए, a line which passing through focus, a line which passing through focus that is called a major axis. इसको क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस. इसका नाम पड़ेगा आपका जो है
मेजर एक्सिस। ओके ओके, मेजर एक्सिस कहाँ पर इलिप्स को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द पॉइंट एट विच मेजर एक्सिस इंटरसेक्ट टू द इलिप्स दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो मेजर एक्सिस यहाँ पर कट कर रहा है एंड अदर पॉइंट हियर इंटरसेक्टिंग दैट। तो लेट दिस इज द ए एंड दिस इज द ए डैश, इसको हम ए और ए डैश मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है जो है। ओके, एंड ए पॉइंट बिटवीन a dash and a is called a midpoint, that is called a center of the what is a ellipse, that a vertical line pass through center, that is called a minor axis, इसको कहेंगे माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, दिस इज द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। दैट मेजर एक्सिस क्या है? ए लाइन which passing through focus of the ellipse, that is called major axis, and a vertical line which passing through center of the ellipse, that is called a minor axis. There are two axes, major axis and minor axis. That I hope that concept is clear about this. That okay, this is the focus. That this is the what is directrix. That eccentricity मैं बता दिया हूँ, eccentricity that represented by E. E is the ratio of if you are taken that on point P, so F चलिए इसको छोड़ लीजिए, F2 E is equal to FP upon this is the MP. It is the ratio of the FP and MP. That in case of ellipse E should be less than 1. E हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। मीन दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन FP, डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन MP. दैट इट मीन दैट वैल्यू विल कम दैट E लेस देन 1, मीन बिटवीन 0 एंड 1 के बीच ये आना चाहिए। ठीक है, so this was about the some part of the ellipse. That then let's discuss about the equation of the ellipse. That is little hard, but we have to understand about that. So I'm going to teach about the equation of the ellipse. ठीक है, थोड़ा सा। So as I drawn here the figure of the ellipse to find out the equation of the ellipse. So I'm going to find the equation of the ellipse. अब equation के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैंने बताया कि सच दैट ये कब इलिप्स कहलाएगा कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P इन द प्लेन L, दिस इज द लाइन L, दिस इज द लाइन L, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स, इसको डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स इधर भी ड्रा कर सकते हैं, दो फोकस होगा, एक इधर फोकस होगा, एक इधर फोकस होगा, दोनों फोकस को हम कंबाइंड में कर सकते हैं। साइज है इसको क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में होता है, सिंगल के लिए हम फोकस यूज करते हैं। आगे बढ़िए। Now, as we know, if this P point is to A, suppose that, तो FP के स्थान पे क्या लिखेंगे? FA. So FA equal to E क्या? PM, अब M आ गया Z पर, AZ हो जाएगा, EAZ. ओके, FA इज इक्वल टू EAZ, जैसे हम बताए थे FP इज इक्वल टू EMP, तो FA इज इक्वल टू EAZ इफ P पॉइंट लाइज ऑन द A। ठीक है, P यदि यहाँ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो है P यहाँ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो है सो वी कैन राइट इट इन दिस केस दैट कि A dash F okay is equal to A dash Z. A dash F is equal to A dash Z. ठीक है, वर्टेक्स से ले रहे हैं, A dash F is equal to A dash Z. Now this is the first and this is the second that. Okay, FA, this FA, where is that? FA
can write that OA minus OF from first FA can be written OA minus OF, OA minus OF equal to E AZ. This is AZ. Can be write that OZ minus OA, OZ minus OA, OZ minus OA. Right? This was from the first. Now from the second, second से चलते हैं. A dash F here can write that A dash O plus OF. A dash F is equal to A dash O plus OF. So here A dash O plus OF equal to E. A dash Z is equal to A dash O plus OZ. A dash O plus OZ. क्लियर? समझ में आ रहा होगा. A dash Z यहाँ तक है. A dash O हमने ले लिया प्लस OZ ले लिया. ठीक. दिस इज द थर्ड हम मान लें इसको, एंड दिस इज द फोर्थ मान लें. ठीक है. फर्स्ट टाइम ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ऐड जब करेंगे तो इक्वेशन आप डायरेक्ट मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फोकस मिल जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट इज एडिंग दैट, एडिंग विच इज थर्ड एंड फोर्थ वी गेट. हमको क्या मिल रहा है? यदि हम ऐड करते हैं तो OA माइनस OF इक्वल टू E. OA माइनस OF. हाँ, वन थिंग मोर, थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफाइड करना चाहते हैं. A dash O, we have to change that. A dash O means OA. Why? Because O is the midpoint. So here we can write that this is AO plus OF equal to E AO plus OZ. This is नंबर 4 हम बना दिया. ठीक है. क्या किया? A dash O equal to AO. Why? Because O is the midpoint. Now if you add, you will find that आप अगर ऐड करते हैं तो दिस एंड दिस, इसको और इसको हम ऐड कर रहे हैं. OA माइनस OF, OA माइनस OF प्लस AO प्लस OF इक्वल टू राइट साइड EOZ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. EOZ माइनस EOA, इधर को EAO प्लस EOZ. AO और OA कोई दिक्कत नहीं, सेम है जो है. ठीक है. चलते हैं. क्या कैंसिल हो रहा? O या पेयर कैंसिल हो गया. यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा जो है EOA और EOA. दिस बोथ आर द कैंसिल दैट. इफ यू एड OA AO बोथ आर सेम दैट. तो हम लिख देते हैं 2AO इक्वल टू हियर 2OZ EOZ and EOZ, that will be EOZ. 2EOZ. 2 being the cancel, so can write AO is equal to EOZ. AO is equal to AO या OA. ठीक है. is equal to EOZ. यहाँ से हम OZ AO कितना हम लिए हैं, यदि हम मान लें लेट, यहाँ पर थोड़ा सा बीच में छोड़ दिए, हमको लेना चाहिए था लेट A डैश A इज इक्वल टू पूरा लेंथ हम 2A मान लेते हैं जो है. A डैश इज इक्वल टू 2A. तो OA कितना हो जाएगा? A हो जाएगा. और A डैश O कितना हो जाएगा? A हो जाएगा. मीन दैट दिस साइड विल बी A और दिस साइड आल्सो विल बी A. तो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ A? कोऑर्डिनेट ऑफ A अगर हम देखें यहाँ पर जो है, तो इसके अनुसार A कामा 0 होगा. और यहाँ पर क्या होगा? माइनस A कामा 0. हियर कोऑर्डिनेट माइनस A कामा 0. दिस इज द A डैश माइनस A कामा 0. हियर A कामा 0 कोऑर्डिनेट भी. यस. अब आइए AO हमने क्या लिया जो है, AO इज इक्वल टू A लिया. जब A लिया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू EOZ. और OZ व्हाट विल बी?
OZ is equal to A upon E. OZ is equal to A upon E. This OZ came that A upon E. और OZ क्या है, इस एक्स एक्सिस पर हम देखें जो है तो यहाँ से ले यहाँ तक x का वैल्यू है. इट मीन्स वी कैन से x इज इक्वल टू ए. इसके लिए हम यूज कर सकते हैं नाउ x इज इक्वल टू ए अपॉन ई. आर एक्स माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू व्हाट, 0. So we found that equation of directrix x minus a upon e is equal to what, 0. This is equation of directrix आ गया जो है. बात समझ में आई. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस साइड दैट x माइनस ए इज इक्वल टू 0. अब हम निकालेंगे इसका फोकस का पॉइंट कितना होगा जो है. फोकस के लिए क्या करेंगे, फोर्थ को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So we have to subtract 4 from the third. We have to subtract 4 from equation 4 from the third. So let's check that. Yeah, third from the 4 जो भी हो आ जाएगा. तो इसको हम मिटा दे रहे हैं. Now subtracting क्या निकालना हमको जो है, हमको निकालना है OF जो है. तो एप्यूल कौन सा है, ये है. एक काम करते हैं, 4 माइनस थर्ड करते हैं जो है. थर्ड को 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम किसे, फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करते हैं. फोर्थ ये है और थर्ड ये है. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ फ्रॉम थर्ड, नहीं थर्ड फ्रॉम फोर्थ, ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही ना. अच्छा हमको निकालना क्या है जो है, OF निकालना. तो थर्ड फ्रॉम फोर्थ, दोनों बात तो ही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट इन दिस एनीथिंग. ये आप फोर्थ फ्रॉम थर्ड करते हैं, यदि फोर्थ फ्रॉम थर्ड फ्रॉम फोर्थ कर रहे हैं. चलिए ठीक है. तो हम लिखते हैं AO प्लस OF माइनस, दिस इज द योर फोर्थ, और थर्ड है OA माइनस OF. ठीक है, फ्रॉम फोर्थ, थर्ड फ्रॉम फोर्थ इज इक्वल टू जो इज इक्वल टू E AO माइनस प्लस OZ माइनस E OZ माइनस OA. What I did, subtracting third from fourth, थर्ड फ्रॉम फोर्थ. तो फोर्थ वाला पहले लिखा AO प्लस OF माइनस OA माइनस OF. AO या OA सब सेम है, कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए. सो ओपन दैट ब्रैकेट दैट AO प्लस OF माइनस OA प्लस OF, ओके, इज इक्वल टू E AO प्लस E OZ माइनस E OZ प्लस E OA. राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो है. नाउ OA being the cancel, there which will be cancelled that here E OZ and E OZ will be cancelled that. So OF plus OF will be equal to 2 OF, that is equal to E AO, and E AO that will be 2 E AO that. Right, 2 again being the cancel. दो कैंसिल हो गया तो क्या मिला आपको, मिला OF इज इक्वल टू E AO. OF ये डिस्टेंस O से लेकर के F, E AO कितना, AO दैट इज A. तो इसको हम लिख सकते हैं OF इज इक्वल टू E है और A है, तो हम लिख दें A. ठीक है, ओरिजिन से. तो OF का डिस्टेंस कितना, A. तो F का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ F, AE कामा 0 बनेगा. So F coordinate will be AE comma 0 and directrix equation x minus A upon E is equal to 0. So we found out two major things, that one is the focus and second is the equation of the directrix. Now with the help of these two things we have to find the equation of the ellipse then. So let's understand about the equation of the ellipse. Okay, with the help of focus and directrix we have to find the equation of the ellipse. That P is a point on the ellipse. Let coordinate of P be x, y. This already found that I shown, and this equation of this directrix x is equal to A upon E, or x minus A upon E is equal to 0 there. ठीक, अब चलते हैं. As you know that
एफ पी, ठीक है, एफ पी अपान पी एम इज इक्वल टू क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड है डायरेक्ट्रिक्स। उसको हम जो है डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, उसके हेल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं जो है एफ पी। एज यू नो एफ पी इज इक्वल टू ई एम पी, एफ पी इज इक्वल टू ई एम पी। FP, this is distance of FP. You have to find that. If you find a distance of FP, so you can write that x minus AE whole square, x minus AE whole square plus y minus 0 whole square, that is y square, is equal to mod of x minus AE, x minus A upon E upon under root square of quotient of x and square of quotient of y, but only x variable having that square of x, quotient of x will be 1 का square root 1, so we can write that 1, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, x minus a upon e equal to 0. Now squaring both sides, if you squaring both sides, so what you will get, that you can get x minus a whole square plus y square is equal to x minus a upon e, what is whole square, that okay. So you have to apply the identities a minus b whole square to find this e। कहाँ है e, छूट रहा है यहाँ, देखिए छूट रहा है यहाँ e, दिस इज द e, ये यहाँ पर छूट रहा है, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसी को हम एंट्री कराते हैं अंदर ई स्क्वायर करके, तो एक ही यहाँ से कट जाना चाहिए जो है, चलते हैं। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला हियर, व्हाट विल बी दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aex, ठीक है। क्या किया, व्हाट आई डिड दैट, अप्लाइड दैट फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया जो है। एक चीज छूट रहा है, स्क्वायरिंग जब हम करेंगे, ठीक है ना, तो दिस आल्सो विल बी स्क्वायर, क्योंकि हम पहले ही इसको छोड़ दिए थे, भूल गए थे, बाय मिस्टेक आई लेफ्ट दैट। सो इफ यू स्क्वायरिंग, सो दिस आल्सो विल बी स्क्वायर दैट हियर एंड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हियर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e square, this is the e square, so take inside that what will be ex minus a whole square, ठीक है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग है आपका जो है ना, आप समझ सकते हैं जो है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला अगेन दैट ex, नाउ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2aex प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e square x square plus a square minus 2aex, that see this will be cancelled because having the same side both side, this will be cancelled that, and other thing no cancel। इसको एक साइड में कर लेते हैं क्योंकि x स्क्वायर यहाँ दिखाई पड़ रहा है, so can write that x स्क्वायर माइनस e स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस e स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या बच रहा है नौ, हाँ प्लस, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस व्हाट वाई स्क्वायर, अभी यहाँ रहने दें, प्लस वाई स्क्वायर, क्या बच गया, दिस नाउ रिमेनिंग, इसको हम उधर ले जा रहे हैं, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर कॉमन दैट हियर, सो एक्स स्क्वायर इफ यू आर टेकिंग दैट कॉमन, so what will be 1 minus e square plus y square is equal to, here what is common, e square minus e square, right। now divide by 1 minus e square से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। चलो, सो ये तो क्लियर हो गया सब, नो डाउट इन दिस, so let me rub it, ठीक है, हाँ। then if we divide by 1 minus e square both side, what answer will get, that x square upon पूरे से हम ले जा रहे हैं, नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ए स्क्वायर, अच्छा पूरा लिख दे रहे हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, देन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट विल बी हियर 1, सब में डिवाइड कर दिया, ठीक, नो डाउट, कैन आई रब, यस।
चलिए मिटा दीजिए इसको. Now this is a cancelled. So we can write that x square upon a square plus y square upon a square 1 minus e square is equal to what? 1. Right? X square upon a square, y square upon a square 1 minus e square. This इसको हम लिख दें कि लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. इसके स्थान पर हम लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. सो हियर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. व्हाट केम दैट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ellipse. Required equation of ellipse came that x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where b square is equal to a square 1 minus e square. That right? This is the equation of the ellipse. एक बार देख लीजिए, कहीं कुछ डाउट तो नहीं लग रहा जो है. Okay, and if directrix taken that side, mean that for the this is a dash, for coordinate a dash mean that minus a comma 0. सॉरी, एक मिनट, फोकस इधर तो आपका ए डैश कितना होगा? माइनस ए कामा 0. फॉर हियर फोकस माइनस ए कामा 0. इसके लिए भी यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन यू हैव टू यूज दैट. ओके, एंड दिस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द along the x axis. दैट ठीक है, आप इतना ध्यान में रखिए. सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस e square. That okay. In next video I will teach that some more things related to ellipse, then I will start what is the exercise. That okay. Thank you student. Now thank you all of you.